Hello friends, so in this video I am going to talk about some basic interview coding questions which is asked in all the technical interview which you are going to appear, because these are some basic questions that each and every technical student must know about it. So in last video I have also created video for OOPS concept. If you have not watched that video till, I will put a link of that video in description. You can go there and you can find watch that video also. So before going to start, I request you to, if you are new in this channel, I again humbly request you that please subscribe this channel and don't forget to press on this bell icon and select all. The main reason behind clicking on this bell icon and select all is that whenever I will upload any videos, you will get a notification for that. So don't forget to do this one, and please, if you like this video, please press on this like button. If you don't like, no problem, you can dislike this video also. I have if you do this one, I can think that yeah, I have some mistake or I didn't making good videos, so I will try to improve my videos. And if you want any suggestions to give me, please comment below. I will try to follow all your suggestions what you will give us. So before so let's start. So the first question is that from class and object is what is an object. So you all have पहले से ही तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नया बताने जा रहा हूँ. मैं बस आपको ब्रशअप करने वाला हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हैं बेसिक टेक्निकल के जो बार बार पूछे जा रहे हैं. सो यू हैव टू रिवाइज दिस ऑल कॉन्सेप्ट अगेन. So what is an object? That they mention an object is an entity of a class. It has its own state, behavior and identity. So these all behavior, identity, states all are defined by that class. So that object is simply, we can say that object is a type of class. When suppose हम लोग क्या करते हैं, int variable create करते हैं, कोई int xyz. तो ये एक्स वाई जेड क्या होता है, वेरिएबल होता है. किस टाइप का, तो इंट टाइप का. उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल होता है. किस टाइप का, तो क्लास टाइप का. सो जैसा हमारा क्लास होगा, वेरिएबल का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, शेप, बिहेवियर जो भी कहे वो उस टाइप का ही होगा. ठीक है. तो जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में अगर बात करें, तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक घर बनाते हैं हम लोग. तो हम लोग घर कैसे बनाते हैं, नक्शा देखकर, तो मैप देखकर. तो वो हमारा मैप जो होता है वो मैप क्लास हो गया, और घर जो हम लोग बनाए तो ये घर क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, उस मैप के द्वारा बना हुआ. तो सेम वही सारी बातें हैं यहाँ लिखी हुई. आप इसे पढ़ भी सकते हो, अदरवाइज सिंपल है, आप क्या करो, एक नोट्स बना लो इन सारे बेसिक क्वेश्चंस के. मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ आऊँगा. तो आप क्या कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस नोट कर लो, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, एंड आप गूगल कर लो कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट. बहुत सारे पेजेस खुलेंगे, वहाँ से जो अच्छे डेफिनेशन आपको मिले वो डेफिनेशन नोट कर लो. उसके बाद उसे अपनी तरह से अपने लैंग्वेज में उस डेफिनेशन को कन्वर्ट करके लिखने का कोशिश करो. ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में आपको जवाब देने में. सो सेकेंड क्वेश्चन इज़ डेट व्हाट इज़ क्लास. सो सिंपली पहले बता चुके कि क्लास क्या है, कि एक सिंपली ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, कि हमारा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर किस तरह का होने वाला है. तो यही सारी बातें यहाँ भी लिखी हुई है. अ क्लास इज सिंपली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. It is the blueprint, templates we can say, or plan that describes the details of an object. Another definition is that a class is a prototype that consists of object in different state with in different behavior. Same things they have also told that it has number of method that's a common the object present within that class. सही बात है. So third question is that what is the difference between class and structure. So class और structure में बहुत सारी differences हैं. अगर एक तरह से नॉन टेक्निकल की भाषा में बात करें तो दोनों ही सेम है. क्लास का भी काम है क्या, कि डेटा मेंबर को बाइंड करके रखना. स्ट्रक्चर का भी काम सेम है, डेटा और मेंबर्स को क्या करते हैं, मेंबर्स को बाइंड करके रखना. बट टेक्निकली जब हम लोग टेक्निकली बात करेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. कुछ सम बेसिक्स डिफरेंसेस क्या है कि हम लोग
स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट कि स्ट्रक्चर रीयूजबिलिटी नहीं देता हमें, लेकिन जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, रीयूजबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम लोग क्लास को रीयूज़ कर सकते हैं। और क्या बेसिक डिफरेंस है एक और है कि लाइक हम लोग स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर के सारे डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, बट क्लास के सारे डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। क्लास की मदद से हम लोग डेटा हेडिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बस स्ट्रक्चर की मदद से नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सारे डेटा पब्लिक ही होते हैं। राइट, सो और कुछ लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। सही है, यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट है ये जो यूज़र क्रिएट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेथड और सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट और डेटा टू बी परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट। सही बात है कि हम लोग ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस सारे ऑपरेशन से रिलेटेड मेथड हम लोग क्या करते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। बट स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हैं, स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ यूजर डिफाइंड कलेक्शन वेरिएबल विच आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। लाइक हम लोग सी में आप लोग लिंक लिस्ट पढ़े होंगे, लिंक लिस्ट इन सी, तो उसके लिए हम लोग नोड का जो स्ट्रक्चर क्रिएट तैयार करते थे, तो उसमें क्या करते थे, वेरिएबल का क्या करते थे हम लोग, कॉम्बिनेशन उसमें डिफाइन करते थे। लाइक वेरिएबल क्रिएट करते थे, इंटीजर का ऐड फ्लोट, और उसका फिर एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते थे उसी स्ट्रक्चर टाइप का। लाइक उसी तरह से ये। So fourth questions is that can you call the base class method without creating an instance? So yes, आप ये questions क्या कह रहा है कि base class के method को आप बिना instance create किए, यानी बिना object create किए यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, यूज़ कर सकते हैं। याद करो, जब आप inheritance का concept अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि base class के डेटा को आप inherit करते हो derived class में, और जब आप derived class का object यूज़ करते हो, क्रिएट करते हो, तो आप derived class के object से base class के भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, करते हो ना। तो यही सेम कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हाँ, हम इस यूज़ से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप बेस क्लास के अंदर जो है स्टैटिक मेथड बना लो। उस मेथड को, जिस मेथड को एक्सेस करना चाहते हो, उस मेथड को क्या कर लो, आप स्टैटिक बना लो। तब आप बेस क्लास के बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी उस स्टैटिक मेथड को यूज़ कर सकते हो। स्टैटिक मेथड का मतलब है, मेन रीज़न यही होता है कि लाइक हमको जिस क्लास के अंदर वो मेथड है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना भी करे तो हम उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। सो पांचवा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। सो कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में। तो बहुत सारा डिफरेंसेस तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके कि क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट क्या है कि उस ब्लूप्रिंट के द्वारा क्रिएट किया गया एंटिटी है, राइट। और क्या है कि एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक ए वेरिएबल ऑफ क्लास। सही बात है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक वेरिएबल का, क्लास का हम लोग एक वेरिएबल समझ लेते हैं। और क्या है ऑब्जेक्ट का क्लास क्या है, तो क्लास क्या करता है, डेटा मेंबर्स को क्या करता है, बाइंड करता है अपने में मेंबर्स को या मेथड को। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ फिजिकल एंटिटी। सही बात है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम लोग घर तैयार कर लेते हैं तो वो घर क्या होता है, हमारा फिजिकल एंटिटी होता है। बट हम लोग जो नक्शा तैयार करके रखते हैं तो वो नक्शा कोई एंटिटी थे, वो तो लॉजिकल उसको एंटिटी बोले, क्योंकि वो नक्शा रियली में प्रेजेंट नहीं करता है। ऑब्जेक्ट टेक्स मेमोरी स्पेस एंड क्लास नहीं टेक। लाइक क्या क्या ऑब्जेक्ट हम लोग क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेमोरी स्पेस लेता है, क्लास नहीं। मतलब क्या कि हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तभी मेमोरी हमारा लाइक रिजर्व होता है, लाइक हीप में। लेकिन जब क्लास क्रिएट करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्लास तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, उसको बनाए नहीं हैं, राइट। सो लास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कैन बी डिक्लेयर एज एन, राइट। सो लास्ट पॉइंट कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम में जितनी मन हो उतना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सेम क्लास का, राइट, एक क्लास का। बट क्लास हम लोग बार बार डिक्लेयर नहीं करते। क्लास सिर्फ क्या करते हैं, एक बार डिफाइन करते हैं या एक बार डिक्लेयर करते हैं। उस क्लास का जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है वो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो लास्ट पॉइंट ये कह रहा है। सो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से, ठीक है, देख लिए, अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करना कि एक नोट्स बना लेना और नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस लिख लेना और सारे क्वेश्चंस एक बार गूगल का कर लेना। जब गूगल करोगे तो बहुत सारे तरह तरह के आपके डेफिनेशन मिलेंगे वहाँ पे। उन सारे डेफिनेशन को आप एनालाइज करना, उसके बाद खुद का एक नया डेफिनेशन बना के लाइक सारे को मर्ज करके जो एक खुद को जो आप समझते हो अपने हिसाब से एक नोट्स बना लेना। और तब उस नोट्स को आप क्या करना, बार बार जब मन करे पढ़ते रहना। तो इससे क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आप लिख भी रहे होगे ना वो सारे नोट्स, तो आपको याद आते रहेंगे वो सारे बात कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट मतलब ये था, तो आप उस हिसाब से इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।